मैं योगेंद्र पांडे ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। टुडेज टॉपिक इज फ्रेंच रेवोल्यूशन फॉर क्लास 9th इंग्लिश मीडियम। लेट्स सी अबाउट नो French Revolution. There are some topics we read about the French Revolution. First, introduction, then causes of the French Revolution, next social causes, economic and political causes. Let's see about French Revolution. French Revolution started in 1789. The series of events started by the middle class, second the upper classes. The people revolted against the cruel regime of monarchy. It means the French Revolution started on 14 July against of the cruel regime of monarchy. The revolution put forwarded the ideas of liberty, fraternity and equality. French Revolution's ideas focused on liberty, fraternity and equality. The revolution began on 14 July 1789 with the storming of the fortress prison, the Bastille. What is Bastille? The Bastille, the fortress prisoners, was hated by all because it stood for the despotic power of the king. The fortress was demolished. Last 14th July, our Prime Minister Mr. Narendra Modi awarded the Legion Honor of the France. The Legion Honor of the France. The Legion Honor of the France was the greatest civilian award by the Francois government. What is Legion Award? Legion Award was an award which based on French Revolution. Let's see next point. Cause of the French Revolution. Social cause. The term old regime is usually used to describe the society and the institution of France before 1789. Society was divided into 3 states. फ्रांस का जो समाज था वो 3 पार्टों में डिवाइड था। नेक्स्ट, और द टर्म इज ओल्ड regime. It means used to describe the society and institution for the French before 1789. Old regime is पुराना काल। तो पुराना काल क्या था? यानी जो प्राचीन 1789 के पहले वाला फ्रांस था उसके विषय में ये था। तो फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट, आई मीन क्लेरजी, नोबेल्टी एंड जनरल, CNG जनरल, comprises of the big businessmen, merchants, courts, officials, lawyers, peasants and artisans, landless, labor and servants. So what is first state? First state means clergy, a group of persons involved in church matters. I mean priest of the temple ornaments known as the clergy. Clergy means C. Write down C. Next, second state, nobility. Persons who have high rank in state administrations. I mean bureaucrats. CN. Next, CN. And other general groups. General group means comprises of big businessmen, merchants, court officials, lawyers, peasants and artisans, landless labor,
servants first two class were exempted. It means ये G. So we have found a formula CNG. Clear? Also you are learned how many groups were found in French Revolution, in French society. The CNG, compressed natural gas, right, means clergy, nobility and general. There are three types peoples or three types states found in the French Revolution in French society. So CNG, compressed natural gas, C for clergy, N for nobility or G for general. It is the way of the best way of the learning. Next, first two classes were exempted from paying taxes. जो पहला दोनों ग्रुप था, फर्स्ट स्टेट एंड सेकेंड स्टेट, वो टैक्स से बिल्कुल फ्री था, उसे टैक्स नहीं देना होता था. दे एंजॉय प्रिविलेजेस बाय बर्थ. बाय बर्थ वो हर चीज इंजॉय करते थे, उनको विशेषाधिकार मिला हुआ था. नोबेल्टी क्लासेस आल्सो एंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेजेस. इवन नोबेल्टी क्लासेस सामंती प्रथा को भी इंजॉय करता था, फ्यूडल सिस्टम को भी इंजॉय करता था. और ये लोग कहते थे कि ये जो सारे इंजॉयड हैं, जो सारे मेरे राइट हैं, ये मेरे बर्थ राइट हैं, जन्मसिद्ध सिद्ध अधिकार है. ओनली द मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट, आई मीन ये जी जनरल हैड टू पे टैक्स टू द स्टेट. यानी कि नोबेल्टी और क्रेजी को कोई टैक्स नहीं देना होता था, कोई कर नहीं देना होता था. लेकिन जो थर्ड स्टेट था, जिसके पास कुछ ज़्यादा नहीं था, जिसमें बड़े बिजनेसमैन आते थे, व्यापारी आते थे, दरबार के कर्मचारी आते थे, वकील आते थे, किसान और कलाकार आते थे, और भूमिहीन मजदूर आते थे, और दास आते थे, इन्हें टैक्स देना होता था. आई मीन जिसके पास अमाउंट है वो टैक्स नहीं दे रहा है, और जिसके पास कुछ भी नहीं है उसे टैक्स देना पड़ रहा है. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टैक्सेस? देयर आर टू टाइप्स. फर्स्ट टाइल एंड सेकेंड तीथे. देयर आर टू टाइप ऑफ टैक्सेस इन द फ्रांस सोसाइटी, टाइल एंड तीथे. लेट्स व्हाट इज टाइल एंड व्हाट तीथे? लेट्स सी इट. Direct tax called tile, and also a number of indirect taxes which were charged on articles of everyday consumption like salt and tobacco. What is the tile? Tile is a direct tax, right? And in other indirect taxes also imposed on the French society, I mean third groups, by the state, by the government, by the king, charge on articles. Next, direct tax called a tile, and also a number of indirect taxes which were charged on articles everyday consumption like salt and tobacco. तो टाइल एक तरीके का टैक्स था, तो डायरेक्ट जनता से लिया जाता था. इसके अतिरिक्त जनता से अन्य कर भी सरकार इम्पोज करती थी, जो उसके डेली नीड की वस्तुओं पर लगाया जाता था, जैसे साल्ट हो या टोबैको है. अ टैक्स कॉल्ड टीथे. व्हाट इज टीथे? टीथे वाज आल्सो कलेक्टेड बाय द चर्च फ्रॉम द पीजेंट्स. यानी कि चर्च के द्वारा जो पीजेंट्स पर टैक्स लगाए जाते थे उसे टीथे कहा जाता था. एंड टाइल, जो टैक्स डायरेक्ट सरकार के द्वारा इम्पोज होता था जनता पर, उसे टाइल कहा जाता था. नेक्स्ट है क्लेरजी एंड नोबेल्टी वेर 10% ऑफ द पॉपुलेशन. क्लेरजी एंड नोबेल्टी वेर 10% of the total population of France, but possessed 60% of land. Third state was 90% of the population, but possessed
40% of the land. It means that only 10% clergy and nobility and the occupied 60% of the land. And the third stage population 90% and occupied only 40% of the land. It means कि क्लर्जी एंड नोबेल्टी केवल 10% थे जनसंख्या में और 60% ज़मीन पर उन्होंने क्या कर रखा था, फ्रांस की कब्जा कर रखा था। और जनरल जो थर्ड स्टेट था उसकी पॉपुलेशन 90% और केवल 40% ही लैंड पर उसका कब्जा था। नेक्स्ट देखते हैं इकोनॉमिक रीज़न क्या रहा, कॉजेस। सब्सिस्टेंस क्राइसिस, it is the most important matter in French Revolution. Subsistence crisis. The population of France rose from about 23 million in 1715. 1715 में जो फ्रांस की जनसंख्या थी वो केवल 23 मिलियन थी, टू 28 मिलियन इन 1789, और बढ़ करके 28 मिलियन कब हो गई, 1789 में हो गई। इस तरीके से जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी उसका जो मेन प्रॉब्लम रही ये पॉपुलेशन रही। द इंक्रीज द डिमांड फॉर द फूड ग्रेन्स, मीन्स जब पॉपुलेशन बढ़ी तो क्या हो जाएगा, फूड ग्रेन्स की डिमांड भी बढ़ जाएगी, अनाजों की डिमांड बढ़ गई। हाउएवर प्रोडक्शन कुड नॉट कीप पीस विद द डिमांड, लेकिन डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, विच अल्टीमेटली इंक्रीज द प्राइसेस। इसका रीज़न क्या होगा, अगर प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है और डिमांड बढ़ रही तो प्राइस ऑलरेडी हाइक हो जाएंगी, पीक पर जाएंगी, यानी प्राइसेस क्या होंगी, बढ़ेंगी ऑफ द फूड ग्रेन्स। और इस प्रकार फूड ग्रेन्स की जो प्राइजेस थी वो बढ़ गई, बिकॉज द पॉपुलेशन रोज 28 मिलियन इन 79, सो द फूड ग्रेन प्राइस हाइक ड्यू टू द increase the population. Due to increase the population, the price of the food grain was high. Most workers work as laborers in the workshop. Many workers work as a labor in the workshop, and they did not see increase in their wages. उन्होंने देखा कि हम तो इतने दिनों से फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, हमारी जो मजदूरी वो नहीं बढ़ रही है, लेकिन फूड ग्रेन्स के जो दाम हैं वो बढ़ रहे हैं। सिचुएशन बिकम रोस व्हेन एवर ड्राउट और हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट। परिस्थितियाँ और भी बदतर हो गई जब क्या हो गया, सूखा या बर्फबारी या ओलावृष्टि हो गया, जिससे क्या हुई, फसलें बर्बाद हो गई। ओलावृष्टि के कारण फसलें बर्बाद हो गई, तब सिचुएशन और ज़्यादा डेंजरस जोन में आ गई। क्लियर। नेक्स्ट, द लीड टू द scarcity of food grains or subsistence crisis which started occurring. This led, इसने क्या किया, to scarcity of food grains. इससे क्या हुआ, फसलों के या अनाजों में कमी आ गई। स्कैर्सिटी ऑफ द फूड ग्रेन्स यानी फसल में फूड ग्रेन्स में कमी आ गई, अनाजों में कमी आ गई। और सब्सिस्टेंस क्राइसिस विच स्टार्टेड, और इस तरीके से सब्सिस्टेंस क्राइसिस शुरू हो गया। ऑकरिंग फ्रीक्वेंटली ड्यूरिंग ओल्ड रिजीम, और ये कब हुआ, इस ओल्ड रिजीम में, ये इस ओल्ड रिजीम में हुआ।
अब व्हाट इज सबस्टेंसेस क्राइसिस? सबस्टेंसेस क्राइसिस मीन्स an extreme situation where the basic means of livelihood are endangered. Clear? यानी livelihood means endangered zone. Next, political causes. सबस्टेंसेस क्राइसिस का मतलब होता है कि जब हमारी बेसिक नीड की चीज़ें खतरनाक स्थिति में आ जाएं, यानी कि वो हमको आसानी से अवेलेबल ना हो पाएँ, उसे हम सबसिस्टेंस क्राइसिस कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? सबसिस्टेंस क्राइसिस। यानी कि जो बेसिक नीड की चीज़ें हैं वो इजीली अवेलेबल ना होने पाएँ और आदमी उसके लिए परेशान हो, उसके लिए उसकी समक्ष विषम परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाएं कि हाउ कैन ही सर्वाइव्ड इन द सोसाइटी। क्लियर? नेक्स्ट, पॉलिटिकल काजेस. Louis XVI come into the power in 1714 and found empty treasury. लुई 16 जब गद्दी पर बैठा 1774 में तो उसे खजाना खाली मिला. लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ फ्रांस. और इसका कारण क्या था? लंबे समय तक चलने वाला युद्ध जिसने फ्रांस के खजाने को ड्रेन कर दिया था, सुखा दिया था, खाली कर दिया था. अंडर लुई 16 फ्रांस हेल्प्ड द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी. फ्रांस का खजाना इसलिए भी खाली हो गया क्योंकि फ्रांस ने अमेरिका की 13 कॉलोनियों को उनको आज़ादी दिलाई थी अपने पुराने दुश्मन से. इनका पुराना दुश्मन कौन था? ब्रिटेन भाई. फ्रांस का सबसे बड़ा दुश्मन ब्रिटेन. आपने अब 10th में पढ़ोगे कि जो राष्ट्र नेशनलिज्म इन इंडिया है, राष्ट्रवाद का उदय भारत में, उसमें आप तीन कर्नाटक वार पढ़ेंगे. फर्स्ट कर्नाटक वार, सेकंड कर्नाटक वार एंड थर्ड कार्नेटिक वार. और इन तीनों कार्नेटिक वार में आप देखेंगे कि फ्रांस और इंग्लैंड ही आपस में भारत में भी लड़े. अगर कोई युद्ध फ्रांस यूरोप में होता था तो इसका इम्पैक्ट इंडिया में भी आ जाता था. लेकिन ये तो नेक्स्ट अगले साल की टॉपिक है. ब्रिटेन विच एडेड मोर देन $1 billion टू डेप्ट. Which added more than $1 billion to a debt. इसने क्या किया? $1 billion का कर्जा कर दिया फ्रांस के ऊपर. यानी जो उसका कॉमन एनिमी था ब्रिटेन, उसके साथ इसने 13 कॉलोनियों को स्वतंत्र कराया अमेरिकन के. और इसका रिजल्ट क्या निकला कि $1 billion से ज़्यादा लीवर डेप्ट हो गया, कर्जा हो गया. लीवर वहाँ की फ्रांस की मुद्रा थी. That had already risen to more than $2 billion. और बहुत जल्द ये बढ़ करके $2 billion हो गया. An extravagant court at the eminence place of Versailles also. और इतना ही नहीं, जो वहाँ की कोर्ट थी और वहाँ का जो महल था, कास्ट ऑफ अ लॉट, उस पर भी बड़ी मात्रा में खर्चा होता था पैसे का. उसके रखरखाव में, उसके मेंटेनेंस में क्या होता था? पैसे का ज़्यादा खर्चा किया जाता था. यानी महल के खर्च को और फिर कोर्ट के खर्च को. इवन मेरी एंटोनेट द क्वीन ऑफ द लुई 16 वॉज वेरी एक्सपेंसिव क्वीन भाई. मतलब कि मेरी एंटोनेट भी इसमें अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करती थी. सबसे अधिक फैशन करने वाली राजकुमारी. वो अपने फैशन, अपने शान शौकत पर बहुत सारा पैसा बर्बाद करती थी. मेरी एंटोनेट जो लुई 16 की रानी थी. To meet its regular expenses such as the cost of maintaining an army, the court, running government offices or universities, the state was forced to increase taxes. अब क्रांति की शुरुआत ये हो गई, यहीं पर बवाल शुरू होगा. अभी अब तो बवाल हो गया. बवाल क्या हो गया?
इन सब खर्चों को मैनेज करने के लिए आई मीन आर्मी का जो खर्चा है, कोर्ट का जो खर्चा है, सरकार का जो खर्चा है, और जो ऑफिसेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनके खर्चे को मैनेज करने के लिए सरकार ने टैक्स इम्पोज करने की योजना बनाई। अब यहीं पर हुआ बवाल। अब इस बवाल को हम देखेंगे इसके अगले वाले पार्ट में कि हो क्या गया जब सरकार ने यहाँ पर टैक्स इम्पोज करने की योजना बनाई, तो बवाल क्या हो गया। और टैक्स कौन देता था आप जानते हैं, ओनली थर्ड स्टेट, है ना। यानी ये क्या है, ये एक बार फिर से देख लेते हैं, CNG, आप याद रखें, क्लेरजी, नोबिलिटी एंड जनरल। तो C वाले और N वाले टैक्स नहीं देते थे। टैक्स कौन देता था, केवल जनरल, यानी कि CNG आप इसको याद रखेंगे, क्लेरजी, नोबिलिटी एंड जनरल। द फ्रेंच सोसाइटी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, CNG, 3 पार्ट CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इट इज़ द ट्रिक, जुगाड़ है कि कैसे याद रखेंगे कि फ्रांस की सोसाइटी कितने पार्ट में डिवाइड थी। तो CNG 3 पार्ट में डिवाइड थी, और केवल G को ही टैक्स देने का, मतलब टैक्स केवल G ही देता था, बल्कि C और N क्या करते थे, इंजॉय करते थे। इनके पास कोई टैक्स नहीं था, कोई टैक्स देते भी नहीं थे। तो फिर हम देखते हैं इसका अगला पार्ट कि टैक्स जब सरकार ने इम्पोज किया तो कौन कौन सी घटनाएं हुई, उसके बाद कैसे एक क्रांति हो गई 14 जुलाई की, उसको हम देखेंगे इसके अगले टॉपिक में। धन्यवाद।